میں عمر فاروق کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ عمر فاروق علیانی وہ آئیں اور اپنے ٹاپک کو ہم تمام لوگوں کے درمیان وضاحت کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ دوستو، آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب کے سامنے چند منٹ بولنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین مجلس، میں جس ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے فکر آخرت۔ یہ عنوان میں نے اس لیے سوچا برجستہ کہ آج انسان دنیا کماتا ہے، دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہے، بستا ہے، لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے اندر ہماری سوچ بالکل کافور ہے۔ اس لیے میں نے فکر آخرت کے تعلق سے چند منٹ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کریں گے۔ موضوع ایسا ہے کہ 2 گھنٹے بولا جائے تو ناکافی ہے۔ بہرحال میں چند منٹ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وَاتَّقُوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ رب العالمین اس آیت مقدسہ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آپ سب اس دن سے ڈرو جس دن تم لوگ لوٹائے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی جانب۔ تمام بنی نوع انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنا ہے، آخری منزل وہی ہے، ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو لوٹائے جاؤ گے، تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی جانب۔ ترجعون فی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر تم سب کو اپنے اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور بدلہ دینے میں کسی طرح کی کوئی ظلم و زیادتی اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے جتنا کچھ دنیا کے اندر کیا ہے ان تمام کاموں کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، آپ دنیا کے اندر ایسے رہو، دنیا کے اندر ایسے جیو، ایسے بسو کہ جیسے آپ غریب ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، آپ سادگی کی زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے اندر جب زندگی گزارو تو کأنک غریب، گویا کہ آپ غریب ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا کہا، او عابر السبیل، یا پھر آپ مسافر ہیں۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بسر کرو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک حدیث کا ٹکڑا، وہ حضرت ابن عمر کا قول ہے، وَكَانَ ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر المساء فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ شام کر لو، جب آپ شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو،
आप जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो कि हम सुबह भी बच के रहेंगे, सुबह भी फला काम करेंगे, सुबह होगी तो हम फला जगह जाएंगे, इस सोच में आप ना रहो। उसके बाद क्या कहा, वैजा अस्बहत फला तंतजरिल मसा, और जब आप सुबह कर लो तो फिर शाम का इंतजार ना करो कि अभी सुबह हो गई है, बहुत सारा काम बाकी है, शाम को इंशाल्लाह वो कर लेंगे, शाम को वहां चले जाएंगे, इस चक्कर में ना रहो। इब्न उमर ये कहते हैं कि जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो, और जब सुबह कर लो तो फिर शाम का इंतजार ना करो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं। आप इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, आपको यकीन नहीं, आपको ये मालूम नहीं है कि आप यहाँ से इस हॉल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। आप इस वक्त पलक झपक रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि इसके बाद मैं अपनी पलक झपक पाऊंगा या नहीं। तो हजरत इब्न उमर ये कहना चाह रहे हैं, आखिरत की फिक्र, आखिरत की सोच लोगों के दिलों में डालना चाहते हैं कि जब आप सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो, और जब आप शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। हमारी मौत और हयात का कोई गारंटी नहीं है, किसी ने कोई गारंटी नहीं ले रखी है कि हम जिंदा रहेंगे, हम फला जगह जाएंगे, हम फला काम करेंगे, हम जो है कुछ दिनों बाद ये काम कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। इस तरह की सोच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। मेरे दोस्तों और भाइयों, तो मैं कह ये रहा था कि मौत और हयात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद के तहत पैदा किया है। वो मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क के अंदर बयान किया है, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात का जो सिस्टम बनाया है, मौत और हयात का जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाया है, वो इसीलिए कि आप अमल के एतबार से कितने अच्छे हैं, कौन अमल के एतबार से कितने अच्छे हैं, ये देखना चाहता है अल्लाह ताला कि आप अमल कर रहे हो कितना ज़्यादा, आपकी नीयत के अंदर खुलूस है या नहीं, आप कितनी ज़्यादा जो है अच्छा अमल कर रहे हैं, ये देखना चाहता है अल्लाह ताला कि अमल के एतबार से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात का सिस्टम बनाया है। और हाँ, इतना ही नहीं, मौत और हयात का सिस्टम बनाने के बाद आपको यूं नहीं छोड़ दिया क्या आप जानवरों की तरह जियो, जानवरों की तरह जो है दुनिया में जो है जिंदगी बसर करो। हमारे पीछे करोड़ों जो है हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी रुज़्द व हिदायत के लिए अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इस दुनिया के अंदर मबूस किया है। और इतना ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर आपके लिए जो दो रास्ते हैं, एक बदी का रास्ता, एक जो है नेकी का रास्ता, सारे रास्ते आपके लिए जो है दिखा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बलद के अंदर क्या कहा, इन्ना हदैनाहु व हदैनाहु नजदैन, हमने आपके लिए दोनों रास्ते जो है दिखा दिए हैं, दोनों रास्ते की तरफ हमने आपको रहनुमाई कर दिए। अब आप चाहो तो शुक्रगुजार बन जाओ, या आप चाहो तो काफिर बन जाओ, आप चाहो तो नाशुक्रा बन जाओ, आप चाहो तो नेकी के रास्ते पर चल करके अपना ठिकाना जन्नत बना लो, या आप चाहो तो बदी के रास्ते पर चल करके अपना ठिकाना जहन्नम बना लो, या आपके इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे रास्ते दिखा दिए हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने आपको जो है रास्तों की तरफ हिदायत कर दी। अब आप चाहो जो है शुक्रगुजार बन जाओ, या चाहो तो आप नाशुक्रा बन जाओ। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी मौत और हयात का सिस्टम बनाने के बाद हमें जो है किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते को इख्तियार करना है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको तर्जुमा करके बता दूं मुख्तसर में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया ही नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। प्रैक्टिकली तौर पर सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के सामने बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खत खींचते हैं सीधा, उसके बाद दाहिने तरफ दो खत, बाएं तरफ दो खत, और बताते हैं कि ये सीधा जो रास्ता है, ये जो है ईमान का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये इस्लाम का रास्ता है। सीधे रास्ते पर चलोगे तो अपना ठिकाना जन्नत बनाओगे। अगर आप इधर उधर भटके, दाएं जाने बाएं जाने भटके, ये शैतान का रास्ता है, दाएं बाएं जाने भटके तो आप जो है जहन्नम के रास्ते पे चले जाओगे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमें जो है सीधा रास्ता मिला हुआ है इस्लाम, इस्लाम के रास्ते पर चल करके अपना ठिकाना जन्नत बनाना है। और आखिरत के ताल्लुक से जितने भी आपकी जो है कोशिश होनी चाहिए, वो फिक्र होनी चाहिए, आखिरत के ताल्लुक से आप फिक्र करें, सोचें। मैं माजरत चाहता हूँ, एक वाक़या मैं आपको बताऊंगा फिक्र आखिरत के ताल्लुक से। सालिम बिन अब्दुल्ला हजरत उमर बिन खत्ताब के पोते हैं, वो जो है खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं। उस वक्त सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर उनकी नजर पड़ती है,
फिर खलीफा बिन मरवान कहते हैं कि ये नौजवान कौन है, जरा बताओ। चेहरे से जो है बिल्कुल रौनक, चेहरे में रोशनी और रौनक, चमक दमक, ये नौजवान कौन है? और जो है उनका लिबास, कपड़ा लत्ता जो इतना पुराना, जरा सा उनको बुला के लाओ मेरे पास, तो ये कौन है? वक्त का खलीफा था, वो सोच रहे थे कि ये गरीब बच्चा होगा, इनको मैं कुछ दे दूं। तो उनको बुला के लाया गया जब, तो नहीं आ रहे थे। कहा कि मैं यहाँ हरम के अंदर आया हूँ, खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर के किसी इंसान से मैं कुछ मांगूं, ये मुझे शर्म आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि किसी इंसान से मैं कोई चीज़ ले लूँ। तो वो इंसान नहीं आया, सालिम बिन अब्दुल्ला नहीं आया वहाँ से। फिर जब खलीफा बिन मरवान ने कहा कि ठीक है अब नहीं आया, कोई बात नहीं, इनको अपना तवाफ पूरा कर लेने दो, इनको अपनी इबादत कर लेने दो, जब ये फारिग हो जाएगा उस वक्त बुला के लाना उसको मेरे पास। तो फिर जो है एक सहाबी को भेजा और कहा कि उनको अब लेके आओ, वो वक्त से फारिग हो चुका है, अपने काम से फारिग हो चुका है। उनको लाया गया, वो आया। सालिम बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा सुनो उसको गौर से। खलीफा बिन मरवान से कहते हैं कि आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? आप दुनियावी जरूरत पूरी करने के लिए या उखरवी जरूरत पूरी करने के लिए? सुनिए जरा इनका जवाब कि आप दुनियावी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे बुलाए हैं या उखरवी जरूरत के लिए? खलीफा बिन मरवान कहते हैं कि मेरे बस में तो दुनिया ही की मालो मता है, मैं दुनिया की मालो मता आपको दे सकता हूँ, मैं उखरवी जरूरत कहाँ आपकी पूरी कर सकता हूँ, वो तो मैं खुद मोहताज हूँ उसका। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, उनका जवाब सुनिए कि मैं आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया नहीं मांगा है, तो आपसे मैं किस शर्म और हया से मैं आपसे दुनिया मांग सकता हूँ? मेरा रब वो है जो कुल कायनात चाहे तो मुझे दे सकता है, मुझे चाहे तो रातों रात गनी और मालदार बना दे, उनसे मैंने आज तक दुनिया का सवाल नहीं किया है, तो आप मुझे दुनिया की जरूरत देना चाहते हैं? ये तो मुझे शर्म आती है, हया आती है कि मैं अल्लाह से ना मांग करके आपसे मांगूं। मेरे दोस्त और भाई देखिए इनके अंदर फिक्र आखिरत कितनी ज्यादा, कि अल्लाह से आज तक दुनिया नहीं मांगा और आप दुनिया देने के चक्कर में हैं। इसी तरीके से अबू दुजाना एक सहाबी रसूल हैं, वो हजरत अबू दुजाना फजर के वक्त जो है रोजाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे और पढ़ते थे। मुख्तसर में सुन लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अबू दुजाना फजर की नमाज पढ़ करके जल्दीबाजी में घर लौटने की कोशिश करते थे हमेशा। तो लोग देखते थे, साहबा इकराम देखते थे कि आखिर ये बंदा नमाज पढ़ के सलाम फिरने के बाद फौरन चले जाते हैं घर, क्या इसको अल्लाह क्या नाम है दुआ की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है? तो एक दिन उनको बुला करके पूछा कि आखिर तुम सलाम फिरने के बाद फौरन चले जाते हो, ऐसा क्या? तो सालिम क्या नाम है अबू दुजाना ने कहा कि असल में बात यह है कि मेरे पड़ोस में एक यहूदी शख्स रहता है और उस यहूदी के आंगन में एक खजूर का दरख्त है और उस दरख्त की टहनी मेरे आंगन पे आकर के लटकती है। तो उसका जो है रात में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो उनके खजूर जो है मेरे आंगन पे आके गिरता है। तो मैं इसीलिए चला जाता हूँ सुबह सुबह और हर वक्त जो है नमाज से पहले फौरन फारिग होकर के मैं चला जाता हूँ, ताकि उस खजूर को मेरे बच्चे सुबह होने के बाद फौरन उठा करके अपने मुंह का निवाला ना बना ले, अपने मुंह में अपने पेट में ना डाल ले, और फिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर के चोर के दरवाजे में खड़ा हो जाऊं और मुझे ये जवाबदेही होना पड़े कि तुमने जो है दूसरों का खाना क्यों खिलवाया था अपने बच्चों को, दूसरे की चीज अपने बच्चे के पेट में क्यों डाला था, आपने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की, इस सोच में कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मैं चोर बन करके नहीं खड़ा हो जाऊं, इसलिए मैं चला जाता हूं और जाकर के सुबह होने से पहले ही उन खजूर को चुन करके एक डाली में उठा करके एक बर्तन में उठा करके मैं उनके घर पे दे करके आता हूँ, उस यहूदी शख्स के घर पे, और इसलिए दे के आता हूँ ताकि मेरे बच्चे उसको खा ना ले और मैं चोर ना बन जाऊं। मेरे दोस्त और भाई इस वाक़े से आप पता लगाइए कि फिक्र आखिरत कितनी ज्यादा थी उनके अंदर, कि आखिरत में मुझे चोर के दरवाजे में ना खड़ा होना पड़े, इसलिए जो है पहले ही नमाज पढ़ करके चला जाता हूँ और जाकर खजूर जमा करके उनके घर पे पहुंचा देता हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन मैं जो है सालिम रहूं और मैं चोर के दरवाजे पे ना खड़ा रहूं। तो मेरे दोस्तों भाइयों फिक्र आखिरत सहाबा किराम के दरमियान कूट कूट करके भरा हुआ था। हमारे अंदर भी होनी चाहिए आखिरत की फिक्र, आखिरत की सोच। हमारी जिंदगी कितनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी का हर लम्हे को अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा तस्वूर करो मेरे दोस्तों और भाइयों। मौत और हयात की कोई गारंटी नहीं। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये उमर फारूक भाई थे जो आप